Okay, so good evening and welcome. My name is Shashidhar, your host, and I welcome you for the Wednesday meeting today. So, how are we? How is the Josh? Let me ask you, how is the Josh? Yeah, good. So people are doing a lot in their life, and Renuji, you can take your time to settle down, and then you can participate as you wish. And so we all know that Renuji has gone through a personal crisis, and she is bouncing back to life, and the bouncing back is a very important part of discussion today. Yeah. So हम लोग बात करेंगे काफी कुछ लाइफ में सेटबैक जब आता है तो बाउंस बैक कैसे करना है. तो that is one aspect that we will be looking at when we talk of which intelligence level we're talking of emotional adversity क्वेश्चन की जब बात करते हैं. ये लाइफ में जब एडवर्सिटी आती है, सेटबैक आता है, तो कौन सी क्वालिटी है जो आपको वापस बाउंस बैक कराती है. So that we will be looking at, right? Okay, but before we start the session and before everybody else joins in with their video on, let us have some sharing. तो क्या चल रहा है लाइफ में, कौन शेयर करना चाहेंगे? एंड सबके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए तो अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा सबका. हाँ, या गुड. तो थोड़ी सी स्माइल के साथ, एंड कौन शेयर करना चाहेंगे, क्या चल रहा है लाइफ में? यस, टोनी इज रेडी एंड एवरीबडी एल्स जो बात नहीं कर रहे हैं, माय सिंसियर रिक्वेस्ट, जो आवाज़ पीछे से अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो आप साइलेंट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए. जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, राइट? ओके, सो सम बेसिक रूल्स ऑफ हाउसकीपिंग टिप्स वी विल फॉलो. सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे तो म्यूट पे रह सकते हैं. जब बात करनी हो वी विल अनम्यूट आवरसेल्फ. ओके, सो आई होप आई डोंट हैव टू रिमाइंड दिस अगेन. So we should be aware of our background noise. Okay. Yes, Tony, go ahead. Set the ball rolling. I just wanted to break the ice, as when you said, can we have people smiling or like with the smile on their faces? In the present circumstances, it is very, very difficult to smile, but still, I would like to share. That as you know that 3 people in my family were COVID positive, and they were fighting this thing. All of them are pretty all right except my father-in-law, who today in the morning after 15th day started having some breathlessness, and he has been admitted to hospital. So the whole day has just been has gone into and the fact remains that I was not physically involved in it at all, but mentally, yes, I was totally involved there. And because I'm at my sister's place at present, and my wife and my son and another attendant who is with my wife were doing the running around. But luckily, after 3 hospitals, the 3rd hospital was able to give him room. So I don't know how they managed, but they have been able to manage. So that's the good part of it. Rest, hopefully, I think he should be out of his negative aspect, because he's already crossed that 14-day mark, and it's just that his cough and his congestion was not going away, which needs to be taken care of. Rest, his oxygen levels and other parameters are pretty all right. Good. So Tony, you have an emergency situation. That is one thing that you have to share, right? So you have your father-in-law who is admitted in the hospital, so you need to do the required things. But the point here is that if we can, I know it is tensed situation, वो stress में होंगे. Background किसी का noise आ रहा है, please check. Yeah. So the point here is that what I wanted to say was, 2 चीजें होती हैं जो पहले भी हम बात कर चुके हैं. एक आउटसाइड वर्ल्ड होता है, एक इनसाइड वर्ल्ड होता है. Okay, and both these worlds are always interacting. Yeah, good, thanks. तो दोनों वर्ल्ड इंटरेक्ट करती हैं आपकी. तो बाहर की दुनिया जो है वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की दुनिया है, और अंदर की दुनिया हमारी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की दुनिया है. करेक्ट? ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा किसको इम्पैक्ट कर रहा है.
If the outside world is impacting you, obviously you will go down. Outside world में तो सिर्फ अभी परेशानियां ही चल रही है. Correct. There is no way outside world is going to give you happiness, right? But if your inside world is powerful, then you can impact the outside world in a much more powerful way. Yes or no? Yeah, yeah. और ये आपके हाथ में है. तो बाहर की सिचुएशन जो मर्जी हो, अगर अंदर की सिचुएशन आपकी स्ट्रांग है, यानी कि परिस्थिति जो मर्जी हो, मनोस्थिति स्ट्रांग है, तो यू कैन इम्पैक्ट द सिचुएशन मच बेटर. अदरवाइज वो सिचुएशन आप पे भारी पड़ जाएगी और आप उसके नीचे दब जाओगे. करेक्ट. तो पहाड़ अगर सर पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली स्माइल नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो तो यू कैन डेफिनेटली स्माइल. एंड एनीवे स्माइल टेक्स लेस एफर्ट देन फ्राउनिंग फेस. फ्राउनिंग फेस में बहुत ज्यादा मसल्स लगते हैं, 200 मसल्स लगते हैं, जबकि स्माइल करने में सिर्फ मेरे ख्याल से 12 से 20 मसल्स लगते हैं. ये साइंटिफिक स्टडी है, कोई चेक कर लेना. तो आसान है स्माइल करना, मुश्किल है फ्राउन करना. ओके, बॉडी को ज्यादा मुश्किल होती है फ्राउन करने में, आसान है स्माइल करना. तो स्माइल, यू कैन ऑलवेज स्माइल. नाउ यू कैन डू बेटर थिंग्स फॉर द पर्सन हु इज कंसर्न, राइट? So just wanted to make a point there. Yes. So Yeah. who else wants to share? So good, Tony, that you are managing that, and good that you shared that. So ये situation बहुत लोगों की लाइफ में चल रही है. अमित जी तो रोज ही इमरजेंसी क्राइसिस में सिचुएशन में भाग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके पहुंचा रहे हैं. हाँ, तो क्राइसिस वाला काम करें, पर ये सेवा है, तो सेवा में आपको ये सब चीजें ध्यान आएंगी. तो सेवा कैसे आप मुसीबतों के बावजूद करते हो, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? Good. So good, Tony, you shared that. Anybody else who wants to share? Yeah, sir, I would like to share. Yes, Gunjan, go ahead. Welcome after a 2 weeks break, huh? Yeah, you know the situation. I was really, Yes. really occupied in some case. There was a police case, and I was feeling really, really, really down. And 5 दिन में 5 नींद के पत्ते खा गई. इतना बुरा हाल था दिमाग का. And फिर शशि सर से मैंने I took the healing, and the day when it was the hearing, and I went with full confidence. There was no no drowning, no nothing was there, and मैंने full conversation की with confidence, and ये सोच के कि जो होगा देखेंगे उसके बाद. And last Monday की बात है, उसी दिन decide किया आकर कि from today onwards I'm not going to have sleeping pills. And धीरे धीरे 2-3 दिन लगे. एक दिन आधी खाई, फिर एक खाई, फिर आधी खाई, फिर बिल्कुल बंद कर दी, ऐसे 1/4 करके. Wednesday I was completed with my sleeping pill also, and from Wednesday till Tuesday I'm feeling so fresh. मेरी पूरी बॉडी एक्स हो रही थी, विड्रॉल सिम्टम्स हुए हैं मुझे, बट माइंड गॉट सो फ्रेश. एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड विद शशिधर सर जी की हीलिंग से मैंने 2 दिन से सुबह 5 बजे उठ के सैर पे जाना शुरू कर दिया. अचानक से वहाँ योगा क्लासेस मिली तो वो ज्वाइन करी. एंड बॉडी एक्स आज बिल्कुल भी नहीं है, 0 ऑलमोस्ट. इट्स लाइक just 10% maybe. Just for within 1 day of stretching with yoga, my body aches has gone. That's like मेरे को तो खुद यकीन नहीं हो रहा है. अभी वो मालिश वाला आया था एंड वो कहता है दीदी मालिश करवानी है. मैंने कहा नहीं, मुझे दर्द होगी तो मैं करवाऊंगी, है ही नहीं, आप जाओ वापस. तो I don't know, but it's a miracle for me because मैं इतनी जल्दी कभी भी किसी गम से उभरी नहीं हूँ बाहर. But this healing has real power. Great, Gunjan ji, absolutely great sharing. And I am aware when you went to Monday, जो कुछ आपके साथ हुआ, उसके बाद आपने share किया था. जी. And so it's very, very powerful from that point. And if you said that, और कितने दिनों से, I just wanted to be curious, कितने दिनों से आप sleeping pills खा के रात को सो रहे थे? And you immediately got freedom in last 1 week. एक महीना से हो गया था. हाँ जी, मतलब 1 महीने से मैं परेशान थी. गलती मेरी से ही हुई. मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे गलती नहीं हुई, गलती हुई, बट वो गलती में मैं खुद ही इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बह गई कि मेरे से एक और गलती हो गई.
और हाँ point जी, वो what I एक wanted, महीने, I don't want to हाँ get जी, into that details क्योंकि वो या फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। मैं हाँ सिर्फ जी, ये हाँ पॉइंट पूछना चाह रहा था कि फ्रीडम फ्रॉम स्लीपिंग पिल्स आपको कितने महीने, दिन या साल के बाद मिली है? That's what I want. 15 दिनों का प्रोसीजर था सर पूरा। मतलब मैंने खानी शुरू कर दी थी, 2-3 दिन खाई, मतलब 2-3 खाई, फिर 4 खाई, फिर एक दिन में 10-10 खाई, कि बस सोना है, कि दिमाग नहीं चलाना। तो जब नींद खुलती थी सो जाती थी खा के। तो ये हिसाब था। ठीक है। तो And how long have you been depending on this? मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक ही महीने से खा रही है, पहले से भी खा रही होंगी? नहीं, पहले भी खाती थी सर, फिर छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। 2-3 great. महीने बिल्कुल नहीं खाई, Wonderful, फिर से great. स्टार्ट कर ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि once you are experiencing that freedom, और Yes. फिर डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग ना, अदरवाइज आई कांट स्पीक, आप सुन भी नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो यू आर नॉट अवेयर, चलिए कोई बात नहीं। सो फ्रीडम फ्रॉम वट एवर यू आर फेसिंग, लाइक यू नो, जो भी कंडीशनिंग है आपकी, जो भी डिपेंडेंसी है, सी स्लीपिंग पिल्स इज a dependency, we know, and there are many other Yes. dependencies. Somebody has that as an alcohol, or somebody has cigarettes, and somebody is, you know, like on drugs, whatever. This is a dependency. Dependency का मतलब क्या है? सोल में पावर नहीं है। So to neutralize that, all you have to say is keep chanting Om Shakti, I am a powerful soul. Om Shakti, I am a powerful soul. So that thought process will change, that I am a powerful soul, I am not depending on anything. Freedom मिल जाती है, and that is exactly what in this case I just wanted to connect with that. जब healing energies जाती हैं तो your soul becomes powerful. आपको healing energy से आपका soul powerful हो जाता है और mind के tendencies को overcome कर जाता है। Shashi, there is some disturbance going on. There is a lot of disturbance. I don't know what to do. Some people are not aware of it. सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। सबको तो म्यूट दिख रहा है मेरे को, कौन म्यूट पे नहीं है? एक मिनट, मैं नहीं हूँ। एक मिनट, ह्यूमन वॉइस है या कुछ और वॉइस है? नहीं, वो हमिंग साउंड है, कुछ आवाज आ रही है, खिड़की के पास है, कोई ओपन में है। एक मिनट, लेट्स ट्राई वन बाय वन। मैंने भी मैं म्यूट कर रहा हूँ, देखिए बंद होती है क्या? हाँ, हो गया। मुझे पहले ही लग रहा था अमित। मुझे पहले ही लग रहा। That's fine. Okay, fine. At least we have got it. So when you want to speak, then you be on unmute. Okay. Yeah, that's fine. So now it is better for everybody, right? Good. So the point, जो मैं point बोल रहा था, समझ में आया, right? जब soul weak होगा, it will latch on to anything and everything. And in sometimes it is sleeping pills, sometimes it is something else, sometimes it is a people, sometimes it is a thing. आप किसी को भी पकड़ के उसको ऐसे, you know, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा, कुछ भी पकड़ लेते हैं और फिर हमको लगता है कि यही है, ये नहीं होगा तो मर जाएंगे। And that is how the dependency comes, right? So if you are a powerful soul, you can just let go, आराम से छोड़ सकते हो, बट उसके लिए सोल में पावर चाहिए और वो हीलिंग एनर्जी से मिलती है। तो हीलिंग एनर्जी मिली, आपके सोल को पावर एक्सपीरियंस हुआ और फिर आप उसे छोड़ पाए। So that is how you actually break your tendencies. That is how you get freedom from your habits. नींद की गोलियां तो वैसे 10 साल 15 साल से ही चल रही हैं, बट बीच में 1-1.5 महीना ऐसा आया। यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि ये एक आध महीने की बात नहीं हो सकती। I know. नहीं, 1-1.5 महीना छोड़ी, बट फिर से कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से, मतलब उतनी कोशिश ही कर पाई मेरी सोल की, 1-1.5 महीने के लिए ही छोड़ पाई सिर्फ। Point what you have to understand here is, बेशक 15 साल की आदत हो, आप छोड़ सकते हो। जी। That is the point I'm trying to make. तो अगर आप सिगरेट पी रहे हो, छोटी सी चीज है, सिगरेट पी रहे हो, अगर कोई बोलता है कि यार मेरे को एक सिगरेट तो पीनी ही है रोज, and I was also in that category only. लेकिन लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ कि मिली ही नहीं और उसके बाद मैंने कहा यार छोड़ सकता हूँ, why unnecessarily pick it up? उसके बाद मैंने पी नहीं। So that's how I actually got freedom, and I've shared that with Amit ji how I got freedom from smoking. मेरे को पहले था कि नहीं, एक तो मैं पीना ही है मेरे को, तो उसके बिना कैसे हो सकता है ना? That is how I used to talk to myself. बहुत कम कर दिया था। Earlier I used to be chain smoker. उसके बाद एक से कम नहीं हो सकता था। That's how I felt, and I'm grateful to lockdown in fact. तो उसमें फिर छूट गया। So everything has, now I don't depend on anything. I don't need anything. And when I don't need anything, not needing is a big freedom. When you don't need something or anyone or anything, it is a big freedom. Now you have a choice. Now you have freedom to do whatever you want, right? This is not the only freedom I got from this healing. The major freedom I got is from my one-sided relationship with somebody, which was there was only my input in it.
only from my side, and I freed that relationship also from my mind completely. Like, okay, fine. Jab hoga tab hoga. I'm not going to run after anybody. So that running mood is gone, and I'm at so much peace, sir. I'm so much peaceful that I can't even believe myself that I have stopped chasing somebody. Absolutely. So that's what I said. It could be a thing, it could be a person. I didn't want to specify Yes, it, लेकिन आपने अब the बोल ही main दिया है. that was my main addiction. It was like since so many years after my divorce, you know, I was actually, that was not a person, that was a concept in my mind which has, मतलब उसने एक घर कर लिया था मेरे दिमाग में, और वो मुझे चाहिए था, वो fulfillment चाहिए थी. Now I feel so complete within myself. I don't think so I need anybody now. I've started. मैं भगवान का चेहरा, आज मैं योगा में ही उन्होंने 2 minutes की मेडिटेशन करवाई है, and they said that you are running after Krishna, and I saw myself as Krishna, and that was such a beautiful experience. Absolutely wonderful, and that is the truth, right? Yeah, yeah. Those who are in the Healers program would agree with me 100% that you are divine and you are Krishna or you are goddess, whatever you can associate with. आप divine ho. We are gods in human form, and that is the basic understanding, the correct understanding, right? Great, wonderful, wonderful, Gunjan ji. That is a great experience, and Thank not needing, as I said, is a big freedom. चाहे वो चीज हो या इंसान हो या सिचुएशन हो, ठीक है जी? जी. Wonderful, great sharing. Who else? Who else wants to share? Let's have a round of applause for Gunjan ji. Thank you so much. Gunjan, एक बार मुझे फोन नहीं किया आपने. You never told me all this. We have been I thought interacting you were because of the busy. healing. You were Because busy. of the healing, we will be interacting, and I told her कि this is how you are going to feel the difference, and she has experienced that very fast. अभी तो एक ही cycle complete हुआ है शायद, हुआ भी हाँ नहीं जी. शायद, अभी हो ही रहा है. I Yeah, was so saying good. that no, what I was trying to say that I've been talking to Gunjan for about 2-3 months now, and you know I've been talking before. I thought you were busy, and I really wanted to share it directly in the group only. So I wanted to keep it a secret. मैं आज 2 दिन से सर को सोच रही हूँ कि कॉल करूँ, नहीं रहने देती हूँ. मीटिंग है वेडनेसडे को. I'll reveal the thing in the meeting only. Great. So that is absolutely wonderful, Gunjan ji. Great breakthrough and great freedom. I can see that in your tone. I can see that in your face. So that is wonderful. All right. Yes, Amit ji, you want to share something? अभी साउंड तो नहीं आ रहा चीजें. हाँ, अब ठीक हो गया. अब ठीक हो गया. कुछ डिफेक्ट किया आज मॉर्निंग से. सॉरी अबाउट दिस. No problem. Just an awareness because it was causing some disturbance. Okay, good. So who else? And meanwhile, let me welcome people who are on not on video. So Neetu ji, Smriti ji, Goldie ji, welcome. And so be part of the discussion even if you are not on video, right? If the video is not on, but you can participate by whenever you want to share. So who else wants to share now? कौन share करना चाहेंगे और? These sharings are part of the program. So don't think कि sharing खत्म होगी फिर program शुरू होगा. Program शुरू हो चुका है और जिसको यहाँ पे जो dose मिलनी है या जो trigger मिलना है वो मिल रहा है. Okay. So we are in that space. So let's say that everything that we say will contribute to all the souls here, right? Okay, good. Who else wants to share? कोई और share करना चाहेंगे? Okay. I can share that बहुत टाइम से कुछ रेवलेशन नहीं हुआ है. It's been good 3 weeks. And मेरे को रेवलेशन होने कुछ 2 दिन पहले से ना कुछ ऐसी फील चालू हो जाती है कि something is about to be unfolded and reveled और कुछ डायरेक्ट डाउनलोड. तो बस ये शेयर करने के लिए है कि I'll be very happy to share something for the weekend. I think 2 दिन में. Yeah. So कुछ टाइम्स पता लगता है कुछ. Whenever you are in the right space, right being, वो डाउनलोड मिल जाएगा. Not to worry. तो क्या सिम्टम्स 2 दिन पहले सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं उसके कुछ. तो वो पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं कि जब 5 करीब 10-15 दिन का गैप हो गया कुछ नया डिस्कवर नहीं हुआ तो उसके बाद एक ऐसा अनुभूति सी होती है. You are feeling that it is just about to happen in one day or 2 days. You're getting into that space that it happens. But whenever you are ready, you will get a download. That's for sure. Because हमारी तरफ से लाइन बिजी हो सकता है, उनकी तरफ से लाइन हमेशा फ्री रहता है. कृष्णा और शिवा is always free. जब भी डायल करोगे मिल जाएगा. That is the best thing. तो सुबह उठ के मेडिटेट करो, you will connect with the divine. There is no way divine से busy engaged tone नहीं मिलता है. हम ही डायल करने में गलती करते हैं.
हम डायल नहीं करते, हम बिजी हो जाते। मैं 3 हफ्ते से डायल नहीं कर रहा था। जिस दिन करोगे हो जाएगा, तो डाउनलोड मिलना शुरू हो जाएगा, सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ओके I saw a राइट। dream last night which cannot be explained, but वो मुझे ड्रीम तभी दिखता है जब 1-2 दिन के बाद कुछ मेजर होने वाला होता है, मतलब which ओके is good, which is the spiritual development, मतलब sure, so we'll have a connection as soon as you get that, we will have a discussion, right? I don't want to miss on that. All right, good. Right, so now let's now get to the agenda. हम बात कर रहे थे on the question based discussion on the intelligence levels, हाँ? तो बेसिक इंटेलिजेंस लेवल पे हम बात कर चुके हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल होता है। देन वी हैव द आईक्यू की बात कर चुके हैं, हम बात कर रहे थे ईक्यू की, और हम ये काफी डिस्कशन कर चुके हैं 2 हफ्ते से। सो वी विल जस्ट समराइज एंड देन टेक इट ऑन टू अ डिफरेंट लेवल टुडे, राइट? तो इमोशनल क्वोशिएंट, देन वी हैव एडवर्सिटी क्वोशिएंट एक्यू, जो हमने बात करी थी क्राइसिस में कैसे आप बाउंस बैक करते हो, दैट इज द एडवर्सिटी क्वोशिएंट फॉर यू। And then we have the last is the SQ or the spiritual quotient. So everybody clear on this? अभी तक जितना डिस्कस हमने किया वहां तक क्लियर है, और जिन्होंने मिस किया है I would request you can see the recording of the earlier sessions so that you can connect fast and relate with what is happening. So everybody is doing that, I suppose, right? तो बहुत ज्यादा रिकैप नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं सीधा। तो हमने देखा हुआ है 7 levels of existence, सबको क्लियर है 7 levels of existence? कौन जना बताएगा मुझे 7 levels of existence? जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फास्ट एंड देन वी मूव ऑन। व्हाट आर द 7 levels of existence? नोट्स देख सकते हो, हाँ, ओपन बुक है, ओपन बुक क्वेश्चन है। देखने बैठ के था दोबारा। फिजिकल बॉडी, फिजिकल ब्रेथ, माइंड, मन, चित्त, ईगो, इंटेलेक्ट, देन लास्ट इज सेल्फ, ओके एंड बेस्ड ऑन वन मेमोरी। करेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा अगर सीरियल वाइज बोलें तो सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी है, राइट? उसके बाद हमारा आता है ब्रेथ। तो बॉडी एंड ब्रेथ ये दोनों हैं जो हमको आराम से एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। फिजिकल बॉडी को हम देखते हैं, देन ब्रेथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको हम बोलते हैं ईगो, इमोशन, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। ये इनसाइड वर्ल्ड है हमारी, करेक्ट? एंड उसके बाद आता है सेल्फ या सोल, विच इज द अल्टीमेट लेवल, जो हम हैं, पर हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन 6 लेवल्स में इतना उलझे रहते हैं, या बॉडी के कंफर्ट्स में इतना उलझे रहते हैं कि वी डोंट लुक बियॉन्ड द बॉडी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इन 7 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे हमको इनसे फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है, एंड देन वी कैन मॉनिटर दैट, रेगुलेट दैट, कंट्रोल दैट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो यही पूरा हमारा जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है। तो बॉडी को हमने देख लिया था, बॉडी को क्या चाहिए? 3 चीजें अगर हम बोलें तो फूड, एक्टिविटी एंड रेस्ट, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं शरीर को। खाना पीना चाहिए, आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, और फिर एक्टिविटी चाहिए, वरना लेथार्जिक हो जाएगी। ब्रेथ को कैसा होना चाहिए ये भी हम देख चुके हैं, इट शुड बी रिलैक्स्ड एंड लॉन्ग। तो ब्रीदिंग जितनी लंबी होगी और जितना रिलैक्स्ड होगा उतना ज्यादा प्राण शक्ति आपकी बॉडी में आएगी। तो दैट इज अबाउट योर ब्रेथ और योर प्राणमय कोश। और यहीं पे हमारे सारे चक्रास हैं और नाड़ीज हैं, जिनको हम हीलिंग के थ्रू हील करते हैं। तो एनर्जी बॉडी या ऑरा बॉडी जो बोलते हैं वो हमारा प्राणमय कोश है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द प्राणा और ब्रेथ, राइट? उसके बाद आते हैं हमारी अंदर की दुनिया जो हम बात कर रहे हैं। तो क्या है ये? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या हुआ? यहाँ पे इमोशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये माइंड के 4 पार्ट्स हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जो हम माइंड बोलते हैं उसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहला आया मन, इमोशन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, राइट? मन, बुद्धि, उसके बाद चित्त, मेमोरी, एंड देन अहंकार या ईगो। यहाँ पे क्लियर है, राइट? एंड देन सेल्फ। तो सेल्फ को अलग कर देते हैं, बॉडी ब्रेथ को अलग कर देते हैं। तो इनसाइड वर्ल्ड हमारी क्या हुई? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आउटसाइड वर्ल्ड क्या हुआ? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। ना ये मैं बता रहा था, 2 हैं, इन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो परिस्थिति अगर भारी पड़ जाएगी, परिस्थिति अगर हमारी नेगेटिव है और वो हम पे भारी पड़ जाएगी, हम नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर हम पॉजिटिव हैं और तो हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं परफेक्टली, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो। तो परिस्थिति से मनोस्थिति पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए सीकर और ए स्पिरिचुअल
जो स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे है, तो ही विल अंडरस्टैंड हाउ टू ओवरकम और डिस्टिंग्विश दीज टू, आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इनसाइड वर्ल्ड। मेकिंग सेंस? अभी तक कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है किसी को? यहाँ तक क्लियर है? राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट इमोशन। अब इमोशन क्या है? इमोशन हार्ट सेंटर है, रजस है। रजस मतलब क्या? असली रस जो है, राइट। नेगेटिव इमोशंस आपको तमोगुण की तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आपको सतोगुण की तरफ ले जाएंगे। यहाँ तक भी क्लियर है, राइट। एंड देन वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन ओवरकम और ट्रांसफॉर्म आवर नेगेटिव इमोशंस टू द पॉजिटिव वंस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अभी तक मैं रिकैप कर रहा हूँ वैसे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो अगर फियर और एंजाइटी के लिए हमने क्या देखा? फियर और एंजाइटी अगर आपको है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसको कैसे हमने न्यूट्रलाइज करना है और कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो फियर और एंजाइटी को हमने फर्स्ट ऑब्जर्व करना है, डिस्टिंग्विश करना है और उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करेंगे हम उसे? फियर और एंजाइटी को वर्क नहीं करना है, हम बात करेंगे फेथ। फेथ इन द डिवाइन को बढ़ाना है, करेक्ट। तो अगर फियर और एंजाइटी इस तराजू में है और फेथ यहाँ पे है, तो फेथ अगर कम होगा, फेथ कम होगा तो फियर और एंजाइटी बढ़ जाएगा। फियर और एंजाइटी को कम करना, फेथ को बढ़ाना शुरू करो। जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा, फेथ बढ़ता जाएगा, एंजाइटी और फियर खत्म हो जाएगा। मेकिंग सेंस? तो हमने ये डिस्टिंग्विश कर लिया था और हमने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी शेयर किया था कवन जी ने, जो लास्ट टाइम संजीव और हम सब ने मिलके डिस्टिंग्विश किया था कि इमोशन जब आता है तो दो चीजें होती हैं, राइट। या तो हम उसे सप्रेस कर देते हैं या उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने देखा था अक्सर, अगर हाई इमोशन होगा तो क्या होगा? हाथ पैर चलने लग जाएंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। कभी हाथ उठ जाता है, कभी टेबल टूट जाती है, कभी लात पड़ जाती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो हाथ और पाँव सबसे ज्यादा हिलते हैं, राइट। सो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर इमोशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? मेरे को डेफिनेशन बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या है, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या बताओगे आप? If I ask you what is emotional intelligence, अब तुमने देख लिया क्या करना है। फियर और एंगर अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो आप इमोशन में बह जा रहे हो। तो हमने क्या करना है? बैलेंसिंग फेथ को बढ़ाना है ताकि हमारा इमोशन कंट्रोल में आ जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए। अब आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। तो इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, इमोशन को ऑब्जर्व करके, उसको एक्सपीरियंस करके, उसको न्यूट्रलाइज करके और फिर एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना, यानी कि जोश में नहीं बल्कि होश में हमने अपने लाइफ के डिसीजंस लेने। देन वी विल हैव ए परफेक्ट डिसीजन इन लाइफ, करेक्ट। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी वांट्स टू मेक एन अटेम्प्ट? कौन अटेम्प्ट करेंगे? एनीबॉडी मेक इट राइट। When we start balancing our emotions, Balancing your emotions, okay, good. Balancing your emotion is more or less correct. Balancing your emotion, जैसे कहते हैं ना कि आपको एंगर आना है तो you should know how to control your anger. हाँ, okay. अब कंट्रोल योर एंगर तो अच्छा वर्ड है, लेकिन लोग अक्सर में कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं सप्रेस करना। It is not suppressing, it is to keep yourself calm. So you have to understand, okay? So let me give you the definition. Emotional intelligence का मतलब है you experience and express the emotion in the most natural way. क्या बोला मैंने? आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और फिर एक्सप्रेस कर रहे हो इन द मोस्ट नेचुरल वे। तो दबाना नहीं है उसको। इमोशन आ गई आपको, कोई सिचुएशन आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को दबाना नहीं है, क्योंकि एंगर को सप्रेस किया तो क्या बनेगा? वो रेज बन जाएगा और फिर वो 6 इंसिडेंसेस को आप दबा लोगे, साथ में प्रेशर कुकर की तरह आप फूटोगे। तो रोड रेज हमने सुना हुआ है, बहुत सारे रेज हमने सुने हुए हैं। हाँ, यहाँ मर्डर हो जाते हैं, यहाँ पे फिर एसिड अटैक हो जाता है, या रॉड लेके किसी का सर फाड़ देते हैं। क्या हो रहा है? ये सब रेज है, रोड रेज में गोली मार दी, राइट। तो रेज में हो रहा है, एंगर में नहीं हो रहा। एंगर हैज बिकम रेज, क्योंकि एंगर को इतना सप्रेस कर लिया है कि वो रेज बन के बाहर निकल गया, राइट। और एंगर को बहुत ज्यादा सप्रेस करोगे, हार्ट अटैक भी होगा, बीपी बढ़ता जाएगा, राइट। So you have to understand, इमोशन को एक्सपीरियंस करना है नेचुरल तरीके से, एक्सप्रेस करना है नेचुरल तरीके से, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। मेकिंग सेंस?
राइट? yeah. तो सप्रेस करने से, जैसे संजीव अक्सर बोलते रहते हैं, सप्रेस करने से डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जाइटी में चले जाओगे। तो उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है। लेकिन एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं कि किसी के सामने जाके उल्टी कर दो उसके मुंह पे, तो जी मेरे को तो एक्सप्रेस करना है गुस्सा, ये लो पकड़ो। तो आप किसी के ऊपर जाके वॉमिट भी नहीं कर सकते। दैट इज नॉट एक्सप्रेशन, दैट इज स्टुपिडिटी, यू विल स्पॉइल द होल रिलेशनशिप। तो यू शुड हैव द इंटेलिजेंस टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। मेकिंग सेंस? तो फियर, हर इमोशन का एक पर्पस होता है, बाय द वे, हर इमोशन का एक पर्पस होता है। फियर का पर्पस क्या है? अभी फियर और एंजाइटी बहुत चल रहा है हमारे लाइफ में आजकल, है ना? तो फियर और एंजाइटी को ही पकड़ लेते हैं, या एंगर आता है तो एंगर पकड़ लेते हैं। फियर का पर्पस क्या है? टेल मी। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी इमोशन। To safeguard us, to save ourselves. सेव योरसेल्फ। फियर का मतलब है टू सेव योरसेल्फ, यानी कि प्रिकॉशन लेना है। ठीक है? तो पहले तो फियर को एनालाइज करो, ये ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है, रियल फियर है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो वैसे ही हटा लोगे आप उसे, ठीक है? होने वाला नहीं है तो छोड़ दो उसे। और फियर अगर जेन्युइन है तो इसीलिए आप देखोगे कोई लाइव वायर होता है तो उसमें स्केलेटन बना हुआ होता है कि भाई डेंजर है, डेंजर सिग्नल लगा होता है, हर जगह डेंजर सिग्नल लगा होता है जहाँ पे जान का खतरा हो, राइट? तो दैट इज एन इंडिकेशन, प्रिकॉशन है। ये लाइव वायर है, इसको जाके टच मत करो। अब आपको छू के देखने की जरूरत नहीं है, उसमें डेंजर साइन है ऑलरेडी, करेक्ट? अब आप 10वीं माले से कूदना चाह रहे हैं, मैं उड़ूंगा, बैड न्यूज, आप नहीं उड़ने वाले हो, राइट? तो यू हैव टू टेक ए बेसिक प्रिकॉशंस अनलेस देयर इज अ सेफ्टी नेट और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तब ठीक है। अदरवाइज ये फियर जेन्युइन है, यहाँ जान का खतरा है, वो जेन्युइन फियर है, आपको प्रिकॉशन लेनी ही पड़ेगी। और आज की सिचुएशन में फियर है, जेन्युइन है, जान जा रही है लोगों की, इट्स नॉट एन इमेजिनरी फियर, तो आपको प्रिकॉशन लेने ही है, राइट? तो फियर का पर्पस क्या है? टेकिंग प्रिकॉशंस, दैट्स ऑल। डर डर के मरना नहीं है, प्रिकॉशन लेना है और फिर आगे अपना टेक एक्शन इन स्पाइट ऑफ द फियर, दैट इज करेज। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, करेज का मतलब क्या है? टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ द फियर, राइट और रॉन्ग? Yeah. राइट? So that is how you look at fear. तो fear का एक पर्पस है which is precaution. Anger का क्या पर्पस है? Anger का पर्पस क्या है? कवन? Anger का पर्पस क्या है? Emotional unpackage of नहीं, एंगर एज सच एन इमोशन, अगर आपको वो सप्रेस भी नहीं करना है और एक्सप्रेस भी सही ढंग से करना है, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस सही करना है, तो उसका एक पर्पस है, उस पर्पस को फुलफिल कर दो। जैसे फियर का है पर्पस क्या है? प्रिकॉशन ले लो, ज्यादा फोबिया में नहीं जाओगे अब आप, है ना? वैसे ही एंगर का एक पर्पस है, वो पर्पस अगर फुलफिल हो गया तो फिर आप उसमें रेज में नहीं जाओगे, तो ना आप अपना नुकसान करोगे ना सामने वाले का नुकसान करोगे। आपको एंगर का एक पर्पस समझना है। एंगर का पर्पस क्या है? let go. Or to But- scare others, to scare others. स्केयर अदर्स नहीं, वो आपको लगता है, वो आपको लगता किसी है से अपनी एंगर बात को मनवाना। To speak up whatever you felt wrong. absolutely right. Anger simply means I don't like it, don't do it. Simple as that. ये मुझे पसंद नहीं है, मत करो। ये जो तुमने अभी किया मुझे अच्छा नहीं लगा, डोंट डू इट। दैट इज द पर्पस ऑफ एंगर। टेल, सोच के देखो और कोई पर्पस है उसका? नहीं, सिर्फ ये कम्युनिकेट करना है, हम नहीं करते। फिर वो रोकते हैं, फिर वो और रोकते हैं, फिर वो और रोकते हैं, फिर वो प्रेशर कुकर की तरह Blast. ब्लास्ट हो जाता है और पूरा किचन भी जाएगा, वैसे पूरी लाइफ आपकी बर्बाद होगी। टाइम बॉम्ब की तरह वो फ्यूज हो जाते हैं, राइट? या रेज होगा। एंगर सप्रेस करोगे तो रेज बन के निकलेगा। नेचुरल तरीके से आप एक्सप्रेस कर दो उसे, बोलो जो तुमने अभी किया मुझे अच्छा नहीं लगा, आई विल प्रेफर अगर आप इसे दोबारा ना करें। फिर अगर दोबारा होता है देन यू हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंगली। बट व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर बीपी? भाई तुम अपना हार्ट अटैक क्यों ला रहे हो? और अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो तो सिचुएशन से हट जाओ, दूर हट जाओ। इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बॉस पसंद नहीं आ रहा है या बॉस की वर्किंग पसंद नहीं आ रही है तो आप थोड़ा अपना पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा
चेंज नहीं हो रहा है, then you have to look for a different organization. Opportunities कम थोड़ी ना, वहां पे गुस्सा करके अपना हार्ट अटैक बढ़ा के वहां पे रिलेशनशिप खराब करके कोई फायदा है? तो ना डिप्रेशन में जाना है, यानी कि ना सप्रेस करना है, ना उसे एक्सप्रेस करके किसी के मुंह को उल्टी करनी है, राइट? यू गेट माय पॉइंट? उससे रिलेशनशिप खराब होगी, लाइफ खराब होगी। सर हम आपको सिर्फ- मेडिटेशन से एंगर कंट्रोल भी कर अरे यार, सकते हैं? वो टेक्निक्स पे बाद में आएंगे, अभी मैं पर्पस बता रहा हूं। ओके जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो टेक्निक अगला स्टेप। जी अभी हम बात करें पर्पस क्या है, इमोशन आ रहा है तो उसकी जरूरत कैसे उसको एक्सप्रेस करूं मैं अभी पहले। So what exactly is the purpose of anger? पर्पस ऑफ एंगर इज टू से डोंट डू इट, आई डोंट लाइक इट। जो भी आप कर रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है उससे, तो ये मत करो, आप मुझे पसंद नहीं है। ये करते जाओगे तो आपका गुस्सा ना अंदर है ना उसके मुंह पे जा रहा है, आराम से बोल रहे हो आप। और अगर वो if he values or she values the relationship, they will do some corrective actions or you can suggest some corrective actions. मैं पिछली बार भी मैंने बताया था, गुस्सा आपको आता नहीं है, आप करते हो, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप उनको गुस्सा दिखाते हो जो या तो आपकी बातें टॉलरेट करेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको बर्दाश्त करेंगे, या फिर आप उनको दिखा रहे हो गुस्सा जो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट showing anger to those who cannot harm us back. अगर हमको नुकसान होने का डर होगा, जॉब जाने का डर होगा, तो आप शायद गुस्सा नहीं करोगे। अभी हम इसको और डेप्थ पे जाएंगे जब हम ईगो पे जाएंगे, लेकिन यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पर्पस क्या है। क्लियर है ये? अब फेयर अगर कंट्रोल में नहीं आएगा, फेयर को अगर आपने प्रिकॉशन के फॉर्म में नहीं लिया, तो आप अपने पास फेयर्स को लेके वो फ्यूचर में डाल के उसे एंग्जाइटी बना लेंगे। पिछली बार एग्जाम में फेल हो गया था, हे भगवान अब और एग्जाम में फेल ना हो जाए। पिछली बार मैथ्स में बड़ी मुश्किल से 40 आए थे, इस बार अगर 0 आ गए तो क्या होगा? अब आप अननेसेसरली एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर के इवेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पास्ट में आप फेल हुए थे, या पास्ट में कोई फेयर था आपका, वो आप फ्यूचर में डाल के उसको एंग्जाइटी बना के रख रहे हो। समझ गए? तो फेयर में प्रिकॉशन लेना है। ओके, आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को लें तो लेट मी डू समथिंग, 2 घंटे और ज्यादा पढ़ूंगा, किसी से ट्यूशन ले लूंगा, किसी से जाके फ्रेंड की कॉपी लेके नोट्स बना लूंगा, कुछ भी और करोगे ना आप। ये करेक्टिव एक्शन है, एंग्जाइटी में नहीं जाना। मेकिंग सेंस, राइट? तो फियर, एंगर, यही 2 कॉमन चीजें हैं। बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं पकड़ रहे, लेकिन हर एक का एक पर्पस होता है, आपको ये समझना। चलो एक और देख लेते हैं, ग्रीफ। आजकल लोग ग्रीफ में भी हैं। हाँ, ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ दुख, ग्रीफ है मतलब सैडनेस, दुख, जैसे मर्जी बोल लो, वियोग। After losing something, हाँ, you are in grief. losing someone और समथिंग में भी कई लोग तो कुछ चीज वस्तु जाने से भी ग्रीफ में आ जाते हैं भैया। इसमें। हाँ ठीक है, तो अगर आप अटैचमेंट हो गए, अटैचमेंट आप Attachment हो गई तो- इंसानों के जैसे अटैच हो गए हो किसी के साथ, तो आपको उसमें भी होगा, तो मान लेते हो उसमें। Grief, पॉइंट क्या है? ग्रीफ का पर्पस बताओ मेरे को, क्या है attachment. ग्रीफ का पर्पस? क्या है? नहीं, पर्पस, अटैचमेंट तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ग्रीफ का पर्पस क्या है? वो क्यों हो रहा है? नहीं, ग्रीफ आ रहा है, कुछ हुआ है, ग्रीफ इमोशन आई है, इसको एक्सपीरियंस, जब तक आप समझोगे नहीं इसका पर्पस क्या है, तब तक आप उसे नेचुरली एक्सेप्ट और एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस कैसे करोगे? To lighten ourselves. To light? No, grief is not the purpose. Lighten नहीं है। ग्रीफ का पर्पस क्या है? ग्रीफ का पर्पस क्या है? If we have ओके, Losing something? बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन नहीं लेते। आपने सिचुएशन देखी, रेलवे स्टेशन पे आपके कोई रिलेटिव है जिनको आप छोड़ने जा रहे हो ट्रेन में, हाँ, और जब ट्रेन जा रही होती है तो अचानक एक ग्रीफ सा आता है, हाँ, आंखों से आंसू आने लगते हैं कि अगर ये जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे अगर किसी को छोड़ने जा रहे हो और आपको मालूम है कि ये भैया 10-15 साल के लिए गए या वॉट एवर इट इज, हाँ, तो ग्रीफ आता है थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है, उसको पकड़ो, पर्पस क्या है ग्रीफ का? Losing? लूजिंग समबडी, लूजिंग Yeah. समबडी। सही पकड़ा आपने। पहले क्या बोल रहे थे? लूजिंग समबडी, करेक्ट? Yeah. तो somebody is getting separated from you and you are not ready for it, तब ये इमोशन आता है। somebody is either going away from your life, maybe due to death or maybe due to some other reason, कि इससे ट्रांसफर हो गया, इंडिया के बाहर चला गया, तो there is a separation happening between you and somebody else and you are not ready for it, so the experience of grief comes. तो इसमें क्या कहना है? You have to accept it and say goodbye. प्रॉपर तरीके से गुड बाय करना है, तो ग्रीफ का पर्पस खत्म हो जाता है। आपको दुख हो रहा है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, दैट्स इट।
ये है ग्रीफ का पर्पस। तो पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे वो अफेयर हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वो खत्म हो रहा हो, या बंदा या बंदी जो है वो पर्सन शरीर छोड़ चुके हों, या फिर वो यूएस जा रहे हों, या कुछ भी और हो, राइट, लाइक पेरेंट्स सीइंग ऑफ देयर चिल्ड्रन गोइंग टू स्टेट्स, या बहुत, ये तो इंडिया में पता नहीं कितनी बार लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ग्रीफ, मेरी बेटी भी बाहर है या तो so मुझे there is a मालूम है। grief, right? You miss Yeah. her, you are Yeah. अब तो ठीक है, अब तो कनेक्शन फास्ट है, जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ पहले जी, तो ये था कि भाई ये जाके बात कब होगी पता ही, अगर आप 70s 80s की बात करो, वो देयर गॉन, देयर गॉन। हाँ, ट्रंक कॉल के लिए भी और उसके लिए भी बहुत बड़ा इशू था, राइट। अब नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट, नाउ वी कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन अ Zoom call and have a good 1 hour chat with anybody on this planet Earth, correct? So that's fine, but grief का पर्पस समझ गया, separation हो रहा है, you are not ready for it, so some you have to say goodbye when you are not ready to say it. So first accept that situation and then say a proper goodbye. Purpose of grief is over. वरना दिल पे लग जाएगा तो क्या होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, है ना। हमने बहुत सारी स्टोरीज में सुना है, रामचंद्र जी गए वनवास और यहाँ दशरथ को दिल का दौरा पड़ गया, ग्रीफ, मेरी वजह से मेरा बेटा जो भी है, जो राजा होना चाहिए था, ग्रीफ। ग्रीफ क्या, कोई गुड बाय करके जा रहा है और तुम रेडी नहीं हो तो ग्रीफ होगा। इट कुड बी एंड ऑफ ए रिलेशनशिप, इट कुड बी एंड ऑफ ए लाइफ, इट कुड बी एंड ऑफ ए व्हाटएवर सिंपल थिंग। अगर आप किसी और स्टेट में भी जा रहे हो, किसी और सिटी में जा रहे हो, ग्रीफ, तो ग्रीफ का पर्पस क्या है, सही सेपरेशन, गुड बाय बोलना है, प्रॉपर तरीके से गुड बाय बोल लोगे, एक्सेप्ट करके, ग्रीफ नहीं रहेगा, वरना ग्रीफ में डूब जाओगे। People need to check again, there's a lot of disturbance coming. Gunjan ji, check करिए। Oh yeah, it was from my side. I was grabbing a paper That's and fine, that's fine. Just handle it. Right, clear है ये? तो हमने 3 इमोशन देख लिए। अब इस पे और ज्यादा अभी और इमोशन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हर चीज पे आप देखेंगे, हर इमोशन का एक पर्पस है, उस पर्पस को अगर आपने समझ लिया, एंड दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, उसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है बहुत नेचुरल तरीके से, वो आपके सिस्टम में नहीं आएगा, अदरवाइज वो सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर घुस जाएगा और फिर वो बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, राइट। एंड इमोशंस आर डीप रूटेड इमोशंस कैन ऑलवेज गिव यू इमोशनल ब्लॉक्स, एंड देन वो आपके चक्रास ब्लॉक करेगा और फिर आप कोई हीलर ढूंढोगे आपकी हीलिंग करने के लिए, या इस जन्म में मिल गया तो इस जन्म में निकल जाएगा, वरना अगले जन्म में फिर कार्मिक ब्लॉक बन के वो आएगा। क्लियर है ये? तो यू आर गोइंग टू ब्लॉक योर चक्रास इफ योर इमोशंस आर नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड नेचुरली। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो इमोशन आया, एक्सपीरियंस करो, एक्सप्रेस करो, ना आपको नुकसान होना चाहिए ना सामने वाले का नुकसान होना चाहिए, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। मेकिंग सेंस? तो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, कुछ शेयरिंग हो जाए थोड़ी सी तो मेरे को पता लगे कि आपको समझ में भी आया, वरना सबका सब यही रह जाएगा। हाँ जी अमित जी। Sir, further building on what you told about the purpose of anger, कि बस यही बोलना है कि मुझे पसंद नहीं है, क्या क्या रिपीट करेंगे वो स्टेटमेंट, एक वन लाइनर? I don't like it, I don't like it, it can be anything, I don't like this or I don't like it, please don't do it again. परफेक्ट। सो बिल्डिंग फर्दर इन दिस, मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल मैं आई वांट टू शेयर सो दैट यू नो पीपल अंडरस्टैंड। मैं रिसेंटली ऐसे ही 2-3 साल से ऐसी चीज़ से निकला जिसमें मैंने ये चीज़ अप्लाई करी बहुत ज़्यादा, और मेरा एंगर इतना 100% कंट्रोल हो गया कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एंड लेटिंग द थिंग्स गो बिगर, कि मैं एडजस्ट कर लूँ या दूसरे की बात समझ लूँ, एडजस्ट कर लूँ अपने आप को प्रेशर में डाल करके, बट वन डे भी नहीं, मतलब फिर धीरे धीरे इट बिकम्स स्टेंचफुल, और देन फिर बाद में बढ़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आई थिंक मैंने एक मिनट का वीडियो बनाया था सच पे, कि वाई झूठ जो है वो सॉरी जो सच है वो मीठा क्यों होता है। आपको शुरू में तो लगेगा एक बार को, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि शुरू में आपके करीब 20-30% लोग आपके लाइफ से जा भी रहे हैं, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू देम। सो रिलेशनशिप आपके 60-80% जाएंगे और नए लोगों की जगह बनेगी। तो उसका एक बाई प्रोडक्ट कह लो कि गुस्सा कंट्रोल हो गया या गुस्से की वजह से ये हो गया। सो एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, आई डोंट लाइक इट, डोंट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर वो खाली एक बॉडी लैंग्वेज है तो भी उसको बॉडी लैंग्वेज से रिस्पॉन्ड किया, या कम्युनिकेशन क्लियर है। और यूजली ये चीज़ें क्लोजेस्ट फैमिली और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही फील होता है, अदरवाइज द आउटसाइडर्स डू नॉट प्ले दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो इट्स सच अ comfortable zone to be in, when you Absolutely. गुस्से को आए हुए 1.5-2 साल हो गया, मतलब फॉर एनी रीजन
Very many good. things. Perfect. And that is a clear-cut demonstration of emotional intelligence, right? बहुत बढ़िया. Okay. Who else wants to share? हाँ जी रेणु जी. आप म्यूट पे हैं. सर अभी पिछले 15 दिन में जो हुआ सर वो आप सब जानते हैं. उसमें जो मैंने अभी किया कि मैंने एक दिन भी हीलिंग बंद नहीं की अपनी सेल्फ हीलिंग, बल्कि मैंने उसको जो मैं उठ के 9 बजे 8 बजे कर रही थी वो मैंने 4 बजे करना स्टार्ट कर दिया. सेकंड थिंग जो थी वो ये था कि फैमिली में भी चल रहा था तो बच्चों का ये रखा मैंने, क्योंकि बच्चे मेरे पास थे कि मुझसे कोई भी एनर्जी लेवल पे ऐसी वाइब्रेशंस ना आए जो मेरे बच्चों को इफेक्ट करे. तो उस चीज का भी खास ध्यान रखा कि मैं अपने आप को अंदर से इस तरीके से रखूं कि मेरे से बच्चों को कोई ये ग्रीफ वाली या एंजाइटी या किसी भी तरीके की ना आए. और जिस थॉट ने सबसे ज्यादा इस टाइम में सपोर्ट किया वो सर ये कि हम सब हीलर हैं. तो पहले खुद की हीलिंग, फिर अपनी फैमिली के लिए. तो उस चीज ने बहुत, फिर ये लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कर रहे हैं, तो मैं भी उसका पार्ट हूँ. और बाकी कनेक्शन में ये रहा कि अपना वो हायर जो है उस परमात्मा से बनाने की कोशिश की. तो उससे ये रहा कि 15 दिन में आज मैं आपके कहने से बैठ पा रही हूँ आपके साथ में. तो बहुत चीजें इस टाइम में 15 दिन में की सर, तो बहुत बहुत हेल्प मिली है. Great, Renuji, and that's very powerful sharing, right? And on this, I will just touch on the AQ part. Adversity quotient क्या है, correct? Whenever there is a setback, life में setback आता है तो दो चीजें होती हैं. कुछ लोग बैठ जाते हैं, they sit back, और कुछ लोग होते हैं they step back and then they bounce back. अगर आप विवेक बिंद्रा को जानते हो और उनका कोई वीडियो हो तो ये एग्जैक्ट उनके वर्डिंग्स हैं कि when there is a setback, don't sit back, step back and bounce back. And this is the actual definition of adversity quotient. जब कोई adversity आती है तो रो बैठ के सड़क के किनारे बैठ के सड़क पे लाइफ में हटके बैठना नहीं है. खिलाड़ी होता है वो फील्ड में जाके खेलता है, 0 पे आउट हो गया तो वो बैठना नहीं है, राइट? हाँ ठीक है, सेटबैक हुआ है, जाएगा कोच के पास, जाएगा बात करेगा क्या हुआ, क्या टेक्निक में गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ, चेकिंग करेगा, अपनी नेट प्रैक्टिस और करेगा, and then he will come back and he will bounce back and hit a century. Correct? Exactly the same. तो लाइफ में तो सेटबैक आना ही है. कुछ नेचुरल सेटबैक हो सकते हैं जहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक इन योर केस रियली. और कुछ और चीजें होती हैं व्हेन देयर इज ए फेलियर. लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, फेलियर्स हर जगह मिलते हैं. जॉब में क्लियर नहीं हुआ, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिली, प्रमोशन मिलना था नहीं मिली. देयर कैन बी मेनी सिचुएशंस जहां पे आपको लगेगा कि यार आई हैव फेल्ड. तो I have failed is okay, but never say I am a failure. You are unique, you have your strength, and still you can have a setback. So setback का मतलब है I have failed, but that doesn't mean I am a failure. बहुत difference है इन दोनों में अगर आप देखेंगे, right? I have failed, there can be thousands of reasons जो आपके कंट्रोल में नहीं है. So even Sachin Tendulkar can get out for 0. That doesn't make him a failure. He is a champion. He is the god of cricket, correct? And similarly, आप भी अपनी लाइफ में यूनिक हैं, चैंपियन हैं. So never say I am a failure after any setback, or never say कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं हताश हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, suicidal tendencies. No, it's all rubbish. आपको एक ह्यूमन लाइफ मिली है, उसका एक पर्पस है, उस पर्पस को पहचानिए और क्रिएट मैजिकल रिजल्ट्स इन योर लाइफ. आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना. तो फेलियर्स आएंगे, सेटबैक आएंगे, वो सेटबैक से बैठना नहीं है, बैठ के रोना नहीं है साइड में. स्टेप बैक करो, चेक करो क्या गड़बड़ हुई, क्या गलती हुई, क्या और अच्छा कर सकता हूं, एंड देन बाउंस बैक. So this bouncing back is the quality of adversity quotient or AQ, right? Clear है यहाँ तक? Good. So now anybody else wants to share on this? So EQ काफी clear हो गया होगा अब तक क्या है, at least concept wise it is clear. इमोशन को एक्सपीरियंस करना है और एक्सप्रेस करना है इतने नेचुरल तरीके से कि ना हमारा नुकसान हो ना सामने वाले का नुकसान. दैट इज इमोशनल क्वोशंट. एडवर्सिटी क्वोशंट, एडवर्सिटी जब आएगी, जब लाइफ थप्पड़ मार के आपको गिरा देगी, उठ के वापस बाउंस बैक करें एंड से आई एम अ चैंपियन एंड देन गेट बैक. आई एम द ग्रेटेस्ट हीलर, गेट बैक.
दैट इज एडवर्सिटी क्वेश्चन। मेकिंग सेंस? और इन सबको जोड़ के जो बनेगा प्रोडक्ट तैयार, वो आपका आएगा स्पिरिचुअल क्वेश्चन, विच विल मूव यू ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। अब उसका मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, टाइम आज थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे जैसे आपका इमोशनल क्वेश्चन इंप्रूव होता जाएगा, आपके अंदर डीप इंट्यूशन पावर आने लगेगी। एंड जैसे जैसे इंट्यूशन पावर आने लगेगी, यू विल बी कनेक्टिंग विद द डिवाइन, आपको इंट्यूशंस मिलने लग जाएंगी, आपको डाउनलोड मिलने लग जाएंगी, एंड यू विल बी मूविंग वेरी वेरी फास्ट ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कितनी स्ट्रांगली, कितने प्रोफाउंडली आप कनेक्टेड है डिवाइन के साथ, और आपको स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है दैट विल take you through your spiritual journey, right? So Amit ji has experienced that many times. I have experienced that umpteen number of times अपनी लाइफ में, और मेरे आजकल तो मैं जो कुछ मेरे को डाउनलोड मिलता है डिवाइन से, मैं उसी के बेसिस पे काम करता हूँ। इवन फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई कनेक्ट। मैं अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वो एक छोटा सा एक मूंगफली के दाने जितना है। तो जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मेरे पास है, तो मैं अपने उस छोटे से दिमाग के डिसीजंस को क्यों इस्तेमाल करूँ? So I will ask the universe will guide me, और मैं वो काम करूँगा, right? So even for small things, and I want to invite Preeti ji for sharing something, because her intuition powers have gone absolutely skyrocketing. Intuition उनको आजकल मिल रहे हैं, and I have had very close good interactions with Preeti ji for some time, and बहुत बढ़िया इनका intuition level है। And Preeti ji, I would request you to share something on this. भैया आई थिंक मेरे ना लाइफ में बहुत एडवर्सिटीज देखकर मैंने अपनी इमोशंस काफी हद तक बैलेंस कर ली थी। आई वाज लाइक एडवर्स सिचुएशंस, डिवोर्स भी फेस किया, फिजिकल अब्यूज भी फेस किया, एवरीथिंग आई फेस, लेकिन आई नेवर की बैठी नहीं मैं कभी, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी, कोई बात नहीं, आगे सिचुएशन मेरे को आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। फाइनली मतलब मुझे अब लगता है कि देयर इज नथिंग जो मुझे स्टॉप कर सकता है। तो इंट्यूशन की जहां तक आपने बात की, तो आई वाज लाइक, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड एंड बोर्न विद दैट इंट्यूटिव क्वालिटीज ऑन मी, क्योंकि बचपन से ही व्हाटएवर आई यूज्ड टू से वो यूज्ड टू हैपन। तो वो इंट्यूटिव पावर्स, फिर कहते हैं ना कि जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को ज्यादा तकलीफ देने शुरू कर देते हो, तो आपकी इंट्यूटिव जो चीजें हैं ना वो सप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे साथ एग्जैक्टली शादी के बाद वही हुआ, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस वो मेरे ऊपर हावी होने लग गए। But the time I realized that, I think after 13-14 years of marriage, 15 साल के बाद approximately, when I realized कि what am I doing to my life, I have to come out of this mess, और मुझे ऐसे मरना पड़ेगा otherwise। तो मेरी जर्नी है ना इस लाइफ की वो खत्म हो जाएगी। Then I started my अपना PLR कराया, अपना कार्मिक डेब्ट्स क्लियर करने शुरू करे। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 14-15 years नाउ। तो लेकिन उसके बाद बच्चों को पालना था, तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई टू कनेक्ट विद गॉड। लेकिन हाँ, इंट्यूशन इतनी थी कि किसी को कुछ होता था तो आई यूज्ड टू नो, और मैं उसको फोन करके बोल देती थी कि तू ठीक है, नहीं है। जैसे बच्चों को भी कुछ होता था ना, तो मैं पहले उनको आगाह कर देती थी कि, लेकिन हाँ अब आपसे हीलिंग सेशंस, आपसे वो सीखने के बाद तो आई एम कनेक्टिंग विद डिवाइन, तो वो डाउनलोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इट इज ओनली दैट। Great, wonderful, Preeti ji. So yes, समझ 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। So this actually requires a good round of applause, and this is something which you are born with. You said तो प्रीति जी को ये जो इनबॉर्न टैलेंट है, तो ऑब्वियसली पिछले जन्म में काफी मेहनत करके आई हैं। इनबॉर्न कुछ नहीं होता है, पिछले जन्म में काफी मेहनत करके आई हैं, तो उसका रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। And that is why I can see that your spiritual journey is really right, picking up, and you've done the healers program at the absolutely right time and serving humanity in a big way. Now I know that जबकि प्रोग्राम खत्म हुए अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए हैं, but her progress has been absolutely fantastic. And जो मैं और फीडबैक में बताता हूँ, and she connects with that straight away, वो more or less same time पे बता देती हैं कि ये मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं कहूँ ठीक है यही है, you know, like that. So बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनकी अच्छी है, और हीलिंग में जब वो यूज कर रही हैं तो और ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वुड से। बट अगेन, आपने अगर पॉइंट इनके शेयरिंग में नोट किया हो, इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, एडवर्सिटी क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, एडवर्सिटीज फेस की हैं, बाहर आई हैं, इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इमोशंस को, इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत अच्छे लेवल पे है, तब स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन बड़ा है,
गेट माय पॉइंट? सीधा स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन नहीं बढ़ता है कभी भी। तो आपको IQ, EQ, AQ पार करके जब आएंगे, देन यू विल सी योर स्पिरिचुअल जर्नी गोइंग अप। सो इंट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल इंडिकेशन ऑफ योर SQ। आपको आने वाली चीजों का आभास हो जाता है और कोई कोई लॉजिक नहीं है उसमें, वो सिर्फ इंट्यूटिव पावर से या तो डाउनलोड है ऊपर से, या आपको गट फीलिंग है आपकी कि आपको लग रहा है ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही होगा, और वो वही होता है। और इसी का अगला स्टेप है जो मैं प्रीति जी को बता भी चुका हूँ कि लाइक इट्स लाइक वाक सिद्धि, जो आप बोलोगे वो होने लगेगा। अभी तो जो होने वाला है वो आपको लग रहा है, बाद में आप जो बोलोगे वो होने लगेगा। तो इट इज द सेकंड लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, व्हेन यू से समथिंग इट्स सो पावरफुल। तो जब आप सत्य और धर्म के मार्ग पे हैं तो जो बोलना शुरू करेंगे वो it will become the word of the universe. The universe will make arrangements to make it happen. So you have to be very, very careful about what you say to others, how you bless others, because वो होने लग जाएगा, right? So you will have to connect with that powers that you have, right? Very good. Now, Sir, yes, sir, एक question है। एक सेकंड बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो लेट मी फर्स्ट चेक विद अमित जी। अमित जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे और उसके बाद दूसरे अमित जी और फिर गुंजा जी। हाँ जी भैया, जब मैं छोटा था तो ये मेरे साथ बहुत होता था कि जब भी मैं कुछ बोलता था तो वो पक्का होता था, पर वो कभी अच्छी चीज नहीं होती थी। कभी भी मैंने बोल दिया कि भैया आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, तो वो होनी ही होनी है। कभी अच्छी चीज के लिए मेरे को पता नहीं चला, पर मैंने हमेशा जब भी बोला तो वो डांट पड़ती थी घर पे, भाई तू चुप रहा कर, तेरी काली जुबान है। हाँ, काली जुबान बोलते हैं, ये काली जुबान नहीं होती एक्चुअली। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप फेयर एनर्जी को ज्यादा पावर दे रहे हैं, फेथ की जगह पे फेयर को दे रहे हो। और मैंने बात करी थी क्या है लॉ इसका, व्हाट यू फियर मोस्ट विल हैपन, है ना? जो आप सबसे ज्यादा डरते हो वो होना ही है लाइफ में, क्योंकि आप उसको बुला रहे हो, डर डर के आप उसको बुला रहे हो, हे भगवान ये ना हो जाए, हे भगवान ये ना आ जाए, हे भगवान शेर ना आ जाए। जंगल में जा रहे बोलो शेर ना आ जाए, शेर ना आ जाए, शेर ने तो आना ही है। तो आपका वो हाल है, मतलब ये जब आप इस तरीके की एनर्जी भेज रहे हो। बचपन में वो डर नाम की चीज इतनी नहीं होती, बट वो अंदर इनबिल्ट होती है, सबकॉन्शियस माइंड में है ना। और ये जो बात अभी आप बोली कि शेर आ जाए, शेर आ जाए, अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो मैंने भगवान से कहा, भगवान कहीं बारिश ना आ जाए, और 5 मिनट में बारिश आई और अच्छे से भीग गया 5 मिनट में सिर्फ, उसके बाद बंद हो गई। सो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन पावर है कि ऐसा हो रहा है, तो नाउ स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव ऑन दैट। अगर आपका जो सोच रहे हो आपके बुलाने से शेर आ सकते हैं, तो आपके बुलाने से महल भी खड़े हो सकते हैं। अमित जी, आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं, आपने एक कहा सेकंड कहीं बारिश ना आ जाए। हाँ जी, और मैं कह रही थी कि प्लीज बारिश आ जाए। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए आप मांग क्या रहे हैं। यू शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट। अगर संजीव बोलते हैं यहाँ पे, तो अभी संजीव बोलते हैं कि पहले ये तो बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए नहीं पूछ रहा, क्या चाहिए तुम्हें, लिखो उसे। उसी चीज के चलते आजकल नहीं शब्द जो है ना, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो पॉइंट ये है सिर्फ कि आपको सिर्फ अवेयरनेस में लाना है आपके, कि आपकी इंट्यूशन पावर है, हर एक के अंदर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीति जी में, सब में है, पर वो सो रही है पावर, उसको जगाना है। उसको जगाने का एक ही तरीका है, IQ, EQ, AQ, ये तीनों लेवल को पार करके जब आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन में पहुंचेंगे, तो इंट्यूशन पावर है आपकी थर्ड चक्र की पावर है। बड़ा सिंपल है, ये आज्ञा चक्र की पावर है ये। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को पावरफुल कर लेंगे तो आपका इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होना ही है, राइट। और बचपन में नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होगा या बाय एक्सपीरियंस थोड़ा सा आ रहा होगा, तो उस क्वालिटी को समझना है, उसको बढ़ाना है और उसको नर्चर करना है। तब थर्ड आई चक्र की पावर से आपका इंट्यूशन, डिवाइन इंट्यूशन है ये। इंट्यूशन आपकी ये बारिश वारिश का नहीं है, वो डिवाइन इंट्यूशन है। फिर जो आएगा वहां से डाउनलोड होके, दैट विल बी मैजिकल, करेक्ट। तो कनेक्ट कीजिए इसी पॉइंट को और इसको और अच्छा क्रिएट करना शुरू करिए। वैसे भी हम बोलते हैं ना, बम लगा के उड़ाना तो बड़ा आसान है, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगती है। तो डिस्ट्रक्शन तो बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन में लगाओ अपनी एनर्जीज, तब पता लगेगा कि आपका कितना इंट्यूशन स्ट्रांग है फॉर क्रिएटिव पर्पस। दैट विल बी द पावर, राइट। गुड। हाँ जी, दूसरे अमित जी सर। नहीं, मैं वो टॉपिक को लंबा नहीं खींचूंगा, आई थिंक वो भी सवाल है, बट मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब इंट्यूशन की बात कर रहे थे हम प्रीति जी आप, तो उसमें एक फीलिंग को लेके हम वापस आते हैं। जैसे हम फ्यूचर के एक बड़े धुंधले से एक चित्त में गए और वापस आए एक फीलिंग को लेकर के, राइट। मेनली ये होता है। फिर उसमें हम स्पेसिफिक हो सकते हैं कि कोई एग्जाम में पास हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत अच्छी बच्चा। तो मैं कह रहा हूँ उसमें आपको टाइमलेस या टाइम लैप्स में टाइम ट्रैवल फील करते हैं, जिसमें कि आप, जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज नो पास्ट एंड फ्यूचर वाला जो कॉन्सेप्ट है टाइमलेसनेस वाला,
वो क्लियरली फील हुआ है? आप पता नहीं, जस्ट इन केस वहां से कभी वापस आए हो? Obviously, when you connect with the divine intuition जब आती है, either you are in a meditative state या just बाहर meditation के आए होते हो, तब वो thought एकदम से download होता है। जब आप nothingness में हो, तो मेरे साथ जो होता है, जब मैं nothingness में हूँ, meditation में हूँ और सुबह healing कर रहा हूँ, तो healing करने के बाद जैसे ही वापस उठा या कुछ हुआ, तो और suddenly there is a big download, तो बहुत सारी चीजें thoughts आने लग जाती हैं, images आने लग जाती हैं। I know exactly, जैसे मेरे को मालूम होता है मेरे को आज क्या करना है, मेरे को सुबह ही पता लगता है कि मेरे को आज क्या करना है, काफी जगह। अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं पूछूं रात को कि क्या करना है मेरे को, कल की प्रायोरिटीज जो हैं, तो देयर इज ए डिवाइन कॉलिंग, आई गेट द इंट्यूशन इन माय मेडिटेशन कि क्या करना है आज। एंड वो बड़ी बहुत फ्लीटिंग इमेजेस होते हैं, पकड़ना होता है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट टू कैच दैट। कोई इमेज बन के आ सकती है, या सिंपल एक थॉट आएगा, खटाक से आएगा, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन एक थॉट आ गया आपने, और मैं फटाक से उसको नोट करके उस पर अब मैं एक्शन लेना शुरू कर। पहले मैं डाउट करता था, अब मैं डाउट नहीं करता। नाउ आई बिलीव माय इंट्यूशंस एंड आई टेक एक्शन ऑन दैट, एंड 10 out of 10 times it is absolutely perfect. That is the way it has to be. So you have to start believing it rather than doubting it. तब वो और strong हो जाएगी। मैं जी मेरा साथ तो ये है कि whenever I sit in meditation, मेरा एक चीज होती है, whenever I सुबह पूजा के वक्त भी whenever I sit and close my eyes, the first thing is the words I say is, Mother, Father of the universe, please bless me with divine and miraculous intuitive powers. Okay. Whatever I'm blessed, it is all, whatever I speak is because of you. Whatever you give me thoughts, I'm speaking that. Absolutely. This is the first thing I speak whenever I sit in meditation. आपको बड़े स्पेसिफिक इंट्यूशंस भी होते हैं, है ना? स्पेसिफिक इंट्यूशंस तो भाई एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्लियर कट होता है, तो मुझे कुछ नजर आता है तो वो अपने ब्लड रिलेशन में, या फिर अगर आप जैसे भैया ने मेरे को कोई फोटोग्राफ भेजी कि इसकी आप इंट्यूटिव चेक करो कि इनका क्या हो रहा, तो वो आफ्टर सीइंग अ पर्सन आई कैन टेल। हाउ अबाउट टेलीपैथीज? टेलीपैथीज भी होती हैं आपको? टेलीपैथीज तो बच्चों के साथ होती है, बिकॉज आई एम कनेक्टेड ऑन अ कार्मिक लेवल विद देम, लाइक मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का। Now Amit ji, after the healing program, we all know that we are doing healing by telepathy only. हम जो healing कर रहे हैं तो telepathy से ही तो healing हो रही है, बताइए ना और कैसे हो रही है? नहीं, मेरा मतलब डीपर लेवल ऑफ टेलीपैथी, जिसमें आप कई सेकंड्स तक उस इंसान के साथ कनेक्टेड हो विदाउट एनी कन्वर्सेशन, कुछ मिनटों तक, मतलब वेरी वेरी स्पेसिफिकली, जैसे कि you will get the message. See, the idea of intuition is that you will get the message and you can convey a message. what I'm talking about telepathy which is continuous telepathy, मतलब it's not like कि मैंने तेरे को याद किया और तू आ गया या तूने फोन कर लिया, it's like okay. वो तो सिंपल है, अगर आपने किसी के बारे में सोचा और वो भी आपके बारे में सोच रहा है तो टेलीपैथी होगी, that's a very simple kind of a telepathy, correct? But here, as a healer, I am saying that when I connect with somebody, I can send that healing energies to them, and when that healing energies reaches them, I get a feedback from them, क्या हो रहा है, that is how I connect with the healings, right? No, मेरा मतलब है telepathy in terms of communication. So there is a clear communication between the two people, which can be reproduced later. मतलब जैसे टेलीपैथी में जैसे हम किसी को याद कर रहे हो, बातें भी चल रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको हील कर रहा हूँ, आप मुझे हील कर रहे हैं, which is a very good example of telepathy. But even the communication, पता नहीं अगर किसी को यहाँ पे फील हुआ तो, जिसमें I have not experienced communication as such. Two-way communication नहीं होता है. It is a feeling or an intuition about the condition or the state of that person, and that is important for me in healing. So I connect only with that. मेरा अभी experience उसी level का, communication नहीं होता. It's not like a test. आपसे एक ऑफलाइन शेयर करूंगा कि मेरे साथ करीब 15-20 सेकंड तक का कम्युनिकेशन ट्वाइस थ्राइस हो सकता है, it is possible, but मैंने experience नहीं किया. अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, it is possible, definitely anything is possible. Yeah, it is because I have also experienced. थर्ड चक्र के कॉन्शियसनेस में anything and everything is possible provided you intend for that. अगर आप वो चाहते हो, जैसे कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ फोन पे भी कैसे भी, लेकिन हमने 15 सेकंड तक कुछ बातें करी जो कि रियलिटी में थी, पर हम लोग हो सकता है, if you are so connected with somebody, with one or two people, it can happen. If you are closely connected, you can definitely connect, right? Yes, we come to that. यस गुंजन जी, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी बीच में? सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सब कहते हैं कि आपके अंदर वही झलक जो आपके अंदर होता है वो सामने वाले में आपको दिखता है। जैसे मैंने सपोज कोई बात करी है किसी से, तो मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, तो दैट मीन्स कि वो एटीट्यूड बुरा मेरे अंदर है। हर बार ऐसे ही होता है? Could be.
हर बार नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते, बट इन योर केस इट कुड हैपन दैट वे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप जिस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे हो आप उसी तरीके के सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में. ओके, हम वैसे You लोगों are a को magnet. अट्रैक्ट करेंगे. You are a magnet for attracting life of that frequency at which you are vibrating. ओके, बिकॉज एक मेरी फ्रेंड है, वो 3-4 दिन से मेरे से ना बात करी थी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो 3-4 दिन मैं भी वही बातें करने लग गई कि या उसको ऐसे नहीं होना चाहिए. then I clearly told her, I said कि मुझे लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही एनालाइज कर रही है और बहुत ज्यादा जजमेंटल स्टेट में है. तो क्या सर मैं जजमेंटल स्टेट में थी? तभी हर मुझे लगा. इंटरेक्शन को आप अपने ऊपर मत लीजिए. अभी मैंने क्या बोला है, आप एक चक्रा पे कॉन्शियसनेस में हैं. मैंने इसे यू आर एन एनर्जी वाइब्रेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी, मे बी इसे यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर सेक्रल चक्र और योर सोलर चक्र, करेक्ट. तो आपकी लाइफ सिचुएशंस कैसी होंगी, उसी चक्र से करस्पॉन्डिंग लाइफ सिचुएशंस आपकी बनेगी लाइफ में, वही आएंगी आपकी लाइफ में. तो आप अट्रैक्ट क्या करिए, लोगों को भी उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो उस फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अभी शेयर किया, आप रूट चक्र के कॉन्शियसनेस में थे, तो आपका सिचुएशन क्या बना, पुलिस स्टेशन. सिचुएशन क्या बनी, सर्वाइवल. तो रूट चक्र के कॉन्शियसनेस से क्रिएट हो रही है, लोग वैसे ही आएंगे. समझ रहे हैं आप? दैट इज व्हाट आई मीन. बातें क्या हो रही है, दैट इज सेकेंडरी. Situations and people will come in that way. And behavior कैसा हो रहा है, that will depend on your karmic account with them. Yeah. So I stopped her, but she said, no, you don't know my level. मैं तो judge करती नहीं हूँ किसी को. मतलब वो. Then I didn't argue. You're in a different loop. You're in a different loop. वो छोड़ दो. वो conversation यहाँ आनी नहीं चाहिए. अभी हम बात ये कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं, that will depend on your vibration level because you are attracting that. अभी यहाँ पे रखना है बस बात. जी जी जी. बाकी एनालिसिस आप करिए, कैसा है इंटरेक्शन वो अलग बात है. राइट. रेणु जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हो गया? ओके गुड. यस टोनी, यू वांट टू शेयर समथिंग? मैं कुछ एक सेकंड, लेट टोनी शेयर एंड देन स्मृति जी आप शेयर करिए. वी आर ऑलरेडी ओवर शॉर्ट टाइम, सो आई नीड सम टाइम मार्जिन फ्रॉम यू, राइट? या आई जस्ट हैड अ स्मॉल क्वेश्चन. ये जो इमोशन ऑफ फियर है, taking precaution for one's own safety, ये तो this is one part of the emotion of fear. How does one tackle the emotion of fear? That I wanted to just get some clarification on that. Take the precautions and take actions. Taking precaution and take action. Fear तो तभी खत्म होगा ना जब आप एक्शन लोगे. अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो आप पहले वो तो मुझे पता है कि स्विमिंग पूल में जब तक जाएंगे नहीं तब तक करेक्ट वो डर रहेगा. तो स्विमिंग का फेयर स्विमिंग पूल में जाने से ही होगा, लेकिन प्रिकॉशन लेके जाना है, सीधा नहीं कूद जाना है. पहले कम पानी में जाओगे, कोच के साथ जाओगे, लाइफ जैकेट वगैरह पहन के जाओगे, जो भी पहनते हैं सेफ्टी के लिए, राइट. दैट इज इट. प्रिकॉशन एंड एक्शन, दैट विल हैंडल द फियर, चाहे वो जो मर्जी हो. टोनी जी, आप क्रिएट कर रहे हो हर चीज, तो आप जो क्रिएट करोगे वही आपको दिखेगा. मुझे प्रिकॉशन एंड एक्शन, दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेरी. ठीक है? ओके गुड. स्मृति जी, and this is the last question. If anybody else has no other question, this is the last. Otherwise you would ask question. I don't have any question. It is just a sharing. Yes, go ahead. हम ग्रुप में मिलकर healing कर रहे हैं for few people around us. So earlier I was thinking कि पता नहीं ये शायद मेरा वहम है, but now since you were giving me so much of clarity, so today मुझे लगता है कि शायद वो एक intuition ही हो सकता है. So जैसे हम राजीव की करावाल जी की कर रहे थे, तो आज से जिस दिन हमने शुरू किया था ना, all of a sudden मेरे दिमाग में यही थॉट था कि he is not going to come back, frankly telling you. एंड कल भी मैं पूरी रात नहीं सो पाई बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड, कल जब उनकी जो फादर की क्रिया चल रही थी, तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे ही आ गया था कि ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक नाउ, एंड ही डिड नॉट कम बैक. सिमिलर केस हुआ जो ये हम नीरू के उसका कर रहे थे, उनका ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सिलेंडर ये वो, बट मुझे कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया इसको मिल जाएगा, और वो मेरे ही घर से मिल गया किसी रिलेटिव के वहां से. और फिर अभी था कि थोड़ा इम्प्रूव कर जाएंगे. फिर एक आपने और दिया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम,
नाम मत लेना is अभी, very critical. पब्लिक उसमें है, नाम मत लीजिए। हाँ ठीक है, good, हाँ, हाँ। नहीं, I'm not taking any name for him. बट वो भी मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि नहीं, इज नॉट गोइंग टू कम बैक, और वो नहीं आए फिर। आई डोंट नो, बट समहाउ ये मेरा एक्चुअल अंदर का स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, Yes. या इट वाज लाइक कि पता नहीं मेरा वहम था या कुछ था, बट इट दैट वाज द थिंग आई वाज गेटिंग। Good. So the point here is that yes, that is intuition. अगर आप पूछे यही intuition है, हाँ यही intuition है, और इसको डाउट नहीं करना, because see point is very clear. जब आप healing कर रहे हो और you are using one of the most powerful healing modality, let me tell you that, okay? और आप जो healing symbols use कर रहे हो वो इस universe का सबसे powerful symbol है। तो जब आप वो healing से एनर्जी से किसी को healing भेज रहे हो तो आप टेलीपैथी लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो उनसे, और वहां से जो फीलिंग आ रही है, इसीलिए मैंने बोला स्पेसिफिकली फॉर हीलिंग, जिनको आप हीलिंग भेज रहे हो उनके लिए जो इंट्यूशन आ रही है उस पर डाउट मत करिए, क्योंकि वो करेक्ट है, दैट इज राइट, राइट। सो हीलिंग फीडबैक यू विल ऑलवेज गेट, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपकी इंट्यूटिव पावर्स और हीलिंग पावर्स और स्ट्रॉन्ग हो, राइट। इस पे हम डिटेल से बाद में बात कर लेंगे, बट आई होप द मैसेज इज क्लियर। ठीक है जी प्रीति? यस सर। या गुड, ऑल राइट। रेणु जी, यस गो अहेड। सर अभी जैसे स्मृति जी बता रहे हैं, आपको एक फीलिंग आ रही है कि वो ठीक नहीं होंगे और आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि वो ठीक नहीं होंगे, उसके बाद आप healing कर रहे हैं जैसे। हाँ, तो उसमें दो तरीके होते हैं। इसमें जो बोल रहे थे कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उसका मॉडलिटी डिफरेंट हो जाता है। ओके, जब कोई मान लीजिए कोई आईसीयू में है और हम उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो देयर आर टू ऑप्शंस। एक तो यह है कि वो ठीक होके इसी शरीर में आएंगे, और दूसरा है वो ठीक होके अगले शरीर में जाएंगे। इसको बोलते हैं सोल इन ट्रांजिशन। ओके, तो हम उसकी जो हीलिंग करते हैं, वो मॉडलिटी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको हम सोल इन हीलिंग या सोल इन ट्रांजिशन वाली हीलिंग करके, तो चाहे वो ठीक होके इधर आए या वो ठीक होके उधर जाए, उनके लिए एक अलग मॉडल होता है तरीका। तो यही मैंने इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि जब आप कोई सोल ट्रांजिशन में है, यानी कि कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है, तो उस समय वो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो हीलिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें हीलिंग जब आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा इंट्यूशन आने लग जाता है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जो मुझे क्लियर हो जाता है, प्रीति जी को क्लियर हो रहा है, स्मृति जी को भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। तो वी डिपेंड ऑन दैट। हीलिंग तो डिवाइन ही कर रहा है, हम अपनी इंट्यूशन पावर को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। जो हाईएस्ट गुड उनके लिए होगा वो उनको मिल जाएगा। एब्सोल्यूट। तो अगर इधर आना होगा तो इधर आएंगे, उधर जाना होगा उधर जाएंगे, लेकिन ब्लॉक्स क्लियर होने के बाद जाएंगे। So both ways, because the soul is not much interested in the body. We as human beings are attached and interested in the body. Soul को body में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको हीलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो कहेगा यार मेरे को यहाँ नहीं आना, मेरे को वहां जाना है, इट्स लाइक नए घर में जाऊंगा। सोल इज इंटरेस्टेड, तो he can leave, soul can leave the old home and go to a new home, that's all. पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहन रहे। सर तो जब मैं इसका मतलब एक सेकंड। तो रेणु जी, पॉइंट क्लियर? या गुड। यस गुंजन जी। सर जब मैं वेंटिलेटर पे थी तो 2 महीने मेरी पूरी हीलिंग चली है, तो दैट मींस द हीलर न्यू that whether I am going to survive or not. I don't know who was the healer, but if I was the healer, yeah, I would know. Yeah, they like because the healer told very first day to my mother. 2 महीने यहाँ 2 दिन में हम कनेक्ट कर लेते हैं हीलिंग के साथ। हाँ जी सर, उन्होंने पहले दूसरे दिन ही कह दिया था कि nothing can happen to her. वेंटिलेटर में nobody can be very sure, but yes, बट एक इंडिकेशन सा रहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत केसेस देख रहे हैं, रोज ही देख रहा हूँ मैं। मेरे पास रोज 8 या 10 केसेस आते हैं जहाँ मैं लोगों को बताता हूँ कि ये रहेंगे या वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोबडी कैन बी 100% श्योर ऑन दिस। मैं एक इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन अगर मैं थोड़ा लाइटर वेन में बोलूँ तो वो इस तरीके से होगा कि अगर 10 ओवर में 50 रन बने हैं तो पॉसिबिलिटी है 50 ओवर में 250 रन बनेंगे, करेक्ट? So that is a prediction. So prediction based on energy feedback, which is much more accurate than any other prediction. Logical mind का prediction नहीं है, ये cosmic mind का prediction है. So more or less it matches, and that is where your intuitive powers are important, because you connect with the intuition to the cosmic consciousness, right? Yeah. Good. So very good discussion and interactions with everybody. And I've taken more than 20 minutes today, okay? So I'm really sorry for that if I've exhausted your time. So thank you very much for your participation. It was a wonderful experience for me. So
I thank you all for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great time, enjoy a great week. Let's meet again next Wednesday. All the best. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.